Hello my dear students, I welcome you all to my YouTube channel. So dear students, हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम 5 वीडियोस कर चुके हैं, ठीक है। तो जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था, दैट इज लेक्चर नंबर 5, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ दैट वीडियो लेक्चर इन द डिस्क्रिप्शन. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट देन यू कैन वॉच फ्रॉम हियर. Okay, in the previous video lecture we had discussed about the torque acting on an electric dipole. That is, the electric dipole plays in the uniform electric field. If the dipole is placed in the uniform electric field, then it experiences a torque, and that torque we had discussed was tau equal to P E sin theta. In vector form it was tau equal to P cross E. Okay, so in the case of torque we had studied about the special cases when the dipole is placed in the electric field by making an angle theta, that is theta equal to 0 degree, theta equal to 90 degree or theta equal to 180 degree. We had studied that if theta equal to 0 degree then it is the stable equilibrium, and if theta equal to 180 degree then it is unstable equilibrium, and if the theta is equal to 90 degree then it is the maximum torque. That is, if the dipole is placed in the electric field by making an angle of 90 degree, then it experiences maximum torque. Okay, after the torque we had discussed about the electric potential energy of an electric dipole. I had told you that electric potential energy of an electric dipole is defined as the work done in rotating the dipole in the electric field through some angle, that is dw equal to tau d theta. Okay, so from here we have integrated from theta 1 to theta 2 and we have obtained our result, and our result was u equal to minus p cos theta 2 minus cos theta 1, and we have taken theta 1 as 90 degree and theta 2 as theta. So we have obtained u equal to minus p cos theta. Okay, so here also we had discussed the special cases, and those special cases were theta equal to 0 degree, theta equal to 90 degree and theta equal to 180 degree. So when theta equal to 90 degree, then the potential energy of the dipole will be equal to 0, because cos 90 is equal to 0. When cos theta is equal to 1, that means if theta equal to 0 degree, then the dipole has minimum potential energy, that is minus P. And when theta equal to 180 degree, then it has maximum potential energy, that is u equal to PE. Okay, so it is all about the previous video lecture. Okay, so let's start our video lecture. Okay students, now we'll discuss about the topics which I have mentioned on the board, and these topics are continuous charge distribution, area vector, electric flux and Gauss theorem, and Coulomb's law from Gauss theorem. Okay, so these will be our topics of this video lecture. Okay, so firstly we'll talk about the continuous charge distribution. Continuous charge distribution is a system of closely spaced charges. Okay, so अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें तो चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका अब जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है Q इक्वल टू एनी, वी कैन इग्नोर इट, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, यानी बहुत बड़े लेवल पे, यानी चार्ज को डील कर पाना बहुत टिपिकल हो जाएगा, तो उस पर हम क्या करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम निगलेक्ट कर देते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि दैट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस यूनिफॉर्मली, ठीक है। पूरी की पूरी सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। अब जैसे सपोज करिए कि हमारे पास में एक कंडक्टर है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए वायर, ठीक है, एक वायर की फॉर्म में है, तब उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तब वहां पर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सपोज देयर इज अ वायर, the charge is distributed over this wire uniformly, then we'll take the charge density as linear charge density, and linear charge density is defined as the ratio of charge to the length, and its unit will be Coulomb per meter. Okay, and if there is a surface, then if the charge is distributed over this surface, then its surface charge density is given by sigma equal to Q over S.
Okay, if there is a sphere, then volume charge density rho equal to Q over V, that is वॉल्यूम. दैट इज अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करते हैं तो वो होगा कूलम पर मीटर क्यूब. ओके, इट वाज ऑल अबाउट द चार्ज डेंसिटी एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ डिस्कस अबाउट एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर is a vector over a surface out of which we have taken a small element. Okay, small element के perpendicular जो vector होगा उसको हम बोलेंगे area vector. Okay, so a small element of area of a surface enclosing a given volume can be represented as a vector. This is known as area vector. So we have taken a area, surface area S, and out of this surface area we have taken a small surface element and it is represented by ds, and ds vector is the area vector. Okay, now I'll discuss about the electric flux. So electric flux is what? The number of field lines passing through any surface. किसी भी surface से जितनी number of field lines pass होती हैं उसको हम बोलते हैं electric flux. There is a surface and out of this surface the field lines are passing normally to this surface. Okay, तो यहाँ पर एक सरफेस है जिसका एरिया S है और इसमें से जो फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्मली पास हो रही हैं, दैट इज इस सरफेस के परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं. ठीक, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो होगा फाई, इट इज डिनोटेड बाय फाई इक्वल टू ES. तो हम यहाँ पे बता सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द सरफेस एरिया. ओके, अब सपोज करिए इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज ओवर अ सरफेस, जैसे कोई सरफेस इस तरह का है, इरेगुलर है वो, तो उस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है, तब उस कंडीशन में फ्लक्स क्या होता है. तो यहां पे नोट कर देते हैं हम, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज ओवर अ सरफेस देन डी फाई. अब यहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है ओवर द सरफेस, तब जो फ्लक्स लेंगे इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ डी फाई इक्वल टू E cos थीटा इंटू ds. So what is this E cos theta? E cos theta is the component which is perpendicular to the surface. ओके, जो सरफेस है हमारा, या हम बोल सकते हैं जो एरिया वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमने ले लिया E cos थीटा. तो E cos थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, देन इट विल बी इक्वल टू EDS cos theta. Now we can write it as d phi is equal to E dot ds. So the total electric flux linked with the any closed surface or any surface is given by phi equal to integration d phi is equal to integration, here we will write S. So S is what? It is surface integral. Okay, E dot ds. So we can write it as surface integral EDS cos theta. So it will be phi. So it is the formula for phi, flux phi. Okay, now special cases, if theta equal to 0 degree, then phi equal to surface integral EDS cos 0 degree. Cos 0 is 1, so equal to surface integral EDS into 1, or equal to E, will take it out from the integration sign, and ds, and ds is what? ds is S, so it will be ES. Clear? E into electric field intensity into surface area. If theta equal to 90 degree, then phi will be equal to surface integral EDS
cos 90 and cos 90 is what? Cos 90 is 0. So flux linked with any surface will be equal to 0. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम और डिटेल में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास में कोई एक सरफेस है। इस सरफेस में हमने क्या किया कि एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया और स्मॉल एलिमेंट इस तरह से लिया, तो यहाँ पर ये हो गया आपका एरिया वेक्टर। ठीक है, सो ध्यान रखना है आपको, ये एरिया वेक्टर होता है ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब सपोज करिए कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं इस तरह से। ठीक है, और ये इसका एरिया वेक्टर इस तरह से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो यहाँ पर एंगल आप ऑब्जर्व कर रहे हो, इट इज 0 डिग्री। ओके, एंड इफ दिस सरफेस इज लाइक दिस and electric field lines are passing like this. Okay, so here angle is 90 degree. Clear? So if the electric field lines passes normally, ये अगर electric field lines नॉर्मली पास होती हैं इसके प्लेन के, ये जो सरफेस है इसके प्लेन के नॉर्मली पास होती हैं, तब एरिया वेक्टर ds वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में एंगल होता है 0 डिग्री। क्लियर? एंड अगर ये इसके प्लेन के अलोंग पास होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, तब एरिया वेक्टर ds वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। क्लियर? इस कंडीशन में देयर विल बी नो फ्लक्स लिंक विद दिस क्लोज सरफेस और दिस सरफेस। ओके, एंड in this situation the flux will be maximum. Clear? And it will be equal to ES here. Clear? So it was all about the electric flux. Now we'll discuss about Gauss theorem. Gauss theorem is very important topic. Board asks a question from Gauss theorem every year. कोई भी ईयर ऐसा नहीं होगा जिसमें गॉस थ्योरम से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो गॉस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गॉस थ्योरम क्या स्टेट करती है? अगर देयर इज any closed surface and the electric flux linked with any closed surface is 1 upon epsilon times the total charge bound by the surface. Okay, that is the electric flux linked with any closed surface. कोई एक क्लोज सरफेस है और उससे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की जा रही है कि उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा। तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना वो सरफेस पे चार्ज होता है, उस सरफेस पे जितना चार्ज होता है उस चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, दैट इज phi इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो आई हैव मेंशन्ड हियर phi इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमने जो इंटीग्रेशन का साइन है इस पे एक सर्कल लगा दिया है। सर्कल लगा दिया इसका मतलब क्या है कि दैट इंटीग्रेशन इज टेकन ओवर द closed surface. Clear? So it is equal to q upon epsilon naught. Clear? Now हम गॉस थ्योरम को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो उसके प्रूफ के लिए हमने क्या किया कि एक चार्ज ले लिया हमने प्लस क्यू। इस प्लस क्यू चार्ज के चारों ओर एक गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस क्या होती है? गॉसियन सरफेस होती है एक इमेजिनरी सरफेस, ठीक है, ओवर विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम at every point of which. Okay, so we have taken a small area element from here. Clear? And the ds vector as the area vector. Okay, so as it is the plus q charge, so its electric field intensity is outwards. Okay, so now the electric field intensity due to this charge plus q charge at here this point, let this point be as p, at this point p is given by E equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square into r cap. अब हम क्या करेंगे कि जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है इससे लिंक फ्लक्स निकालेंगे। तो ये एरिया एलिमेंट स्मॉल है तो इससे लिंक फ्लक्स भी स्मॉल होगा, तो इट इज d phi इक्वल टू E डॉट ds। क्लियर? अब E की वैल्यू यहां से लगा दीजिए 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square into r cap into ds। और ds वेक्टर जो था आपका, ds वेक्टर आपने पढ़ा एरिया वेक्टर क्या होता है? ds into n cap. Okay, so we have taken here ds into n cap. So r
cap dot n cap, r cap dot n cap will be r cap dot n cap is equal to 1 into cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर जो r कैप है और n कैप दोनों सेम लाइन के अलॉन्ग है, इसीलिए यहाँ पे एंगल 0 डिग्री होगा दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये 1 आ गया, तो हमारा d5 आ गया 1/4πε0 q/r² ds। क्लियर। अब हम निकालेंगे टोटल फ्लक्स लिंक विद द एंटायर गॉसियन सरफेस। सो टोटल फ्लक्स होगा फाई, और आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा सरफेस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ d5 इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0। अब ये वैल्यू लगाएंगे आप इसमें q/r² ds। अब यहां पर आप क्या करेंगे कि जो 1/4πε0 q/r² को आप इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेंगे, तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r² क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds। अब देखिए यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है वो गॉसियन सरफेस कैसी है, तो गॉसियन सरफेस है स्फेरिकल, तो यहाँ पर इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो टोटल सरफेस एरिया इसका कितना होता है स्फीयर का 4πr²। तो हम जो है इसमें वैल्यू लगाएंगे। नाउ क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ds इक्वल टू 4πr²। ठीक है, देयरफॉर फाई इज इक्वल टू वैल्यू लगाइए 1/4πε0 q/r² इंटू 4πr²। अब जो चीज कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करिए, तो 4π से 4π कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, क्या बचा फाई इक्वल टू q/ε0 which is the proof of Gauss theorem. Okay, which is so it was the proof of Gauss theorem. Clear? तो I hope ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक। Okay students, now we'll derive the Coulomb's law from Gauss theorem. Gauss theorem से हमें पता है कि सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू q/ε0 होता है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया कि E ds cos थीटा इक्वल टू q/ε0। तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल E ds cos 0 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर ds वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इसके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज सरफेस इंटीग्रल E ds इक्वल टू q1/ε0 हम इस चार्ज की वजह से निकाल लें, q1 की वजह से। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि E जो है इस गॉसियन सरफेस के ऊपर, मैंने आपको बताया गॉसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है ओवर विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज द सेम वैल्यू एट ऑल द पॉइंट्स। ओके, सो E इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर लेंगे इंटीग्रेशन साइन से, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds बचेगा। अब ds का जो इंटीग्रेशन आएगा, जो ds है, ds यानी पूरे एंटायर सरफेस का एरिया, ये जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस यहाँ पे स्फेरिकल है, तो ये आ जाएगा 4πr²। ठीक है, पूरे सरफेस का एरिया कितना आ गया 4πr²। अब E इंटू 4πr² इक्वल टू q1/ε0। यहाँ से हम E की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से कैलकुलेट कर लेंगे हम क्या E, तो E इक्वल टू 1/4πε0 q1/r²। अब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q2 इज गिवन बाय, यानी ये जो Q2 है ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस Q1 की वजह से, तो वो आंसर है वो कितना होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था F इक्वल टू QE। ठीक है, तो कौन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है 2, तो वो हो जाएगा Q2E। ठीक है, तो F इक्वल टू Q2E, तो Q2E ये यहाँ पे जो है, यहाँ से हमने क्या किया कि E की वैल्यू लगा दी। ठीक है, E की वैल्यू हमने यहां से पुट कर दी इसमें 1/4πε0 q1/r² इंटू Q2, तो 1/4πε0 q1 q2/r², which is Coulomb's law. So it was the deduction of Coulomb's law from the Gauss theorem. ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।